जनरेशन है वो कुछ भी बोल सकती है, दिल्ली मेरे बाप की है, मैं इधर का हूँ, मैं इधर का, ये कॉमन। तो क्या है, क्या फिल्म की क्या सारांश के कहते हो, क्या है फिल्म की कहानी? फिल्म टीनेजर की है, मस्ती है, जो आजकल थ्री इडियट में कहता था मस्ती, वैसे मस्ती हीरो हीरोइन की है, और डांसिंग है काफ़ी अच्छा, और लड़के सब नए न्यू जनरेशन है और अच्छे डांसर्स है। ये अभी हमारे प्रोड्यूसर बताएंगे इसके बारे में। जी जी सर, बताएं आप। दिल्ली मेरे बाप की ऐसे क्यों, कैसे आपने सोच लिया दिल्ली मेरे बाप की हो जाएगी? This is a कैमरा सर, सर hard-hitting, सर सर heartwarming, लुक एट कैमरा सर। and thrilling movie, which has a great message. That ego, misuse of power and money, which is most common in the youngsters. In this life. So that is very dangerous in life, especially for the society. So this evil has to go away somehow. So to help in that, we have produced this movie, which gives this kind of great message. And Dilli Mere Baap Ki is a great title. So everybody, I think, likes it. So there is nothing like that, that Delhi is. दिल्ली को प्रमोट कर रही है। Not Delhi ko promote, it's promoting all over India. It's, Delhi is capital of India, so it's promoting India. So this is a social message. So social messages are always good to deliver. मैसेज हुआ सर, दिल्ली मेरे बाप की कल कोई बनाएगा शौकीन कमीना, ऐसे ऐसे कैसे कैसे? No, there is Delhi Mere Baap Ki is only a title. So this through this title we have delivered a great message, a good message. Message is that especially in the youngsters, they are unable to control themselves. They involve into different kind of evils. They do wrongful acts. To stop that, we have shown this, that parents should keep an eye and a little check. Of course, they have to deal with them friendly, be friends with them, with the children. But at the same time, they have to keep an eye, keep a little bit of touch, so that they cannot lose their track, go on wrong tracks. This is the message. Music, it's a great music, great songs. Title song is great, and here is our choreographer. It's great. He has done a great job. I'm very happy with that. He has done a great job on that. सर अभी अपनी कहानी बताइए, क्या लाइन बोलन दिल्ली कई चीजें हैं, वहाँ राजनीति है, वहाँ पे कुछ क्राइम है, वहाँ पे रेप, कुछ भी नहीं क्राइम। तो आपने क्या दिखाया अपने फिल्म में से? बस मैं तो डांस डायरेक्टर, मैंने अपने कोरियोग्राफी के हिसाब से डुएट सॉन्ग करवाया, आइटम सॉन्ग करवाया। आजकल बच्चे लोग का टीनेजर जैसे डांस करते गाड़ी पे उछल कूद, वो करवाया, वो मेरा काम है, वो मैंने करवाया। और इतना अच्छा गाने हुए, इतनी अच्छी म्यूजिक है इसमें, तो हमारे शशि पाल जी खास हमारे डायरेक्टर, उसने बहुत अच्छे डायरेक्शन किए। बस यही है। कई जमाने से है आप, पुराने जमाने से साथ ही साथ हाथ बढ़ाना, ऐसे फिल्में करते थे। आज दिल्ली मेरे बाप की, कलकत्ता मेरे अब्बा की, तो कैसे कैसे क्या कहना चाहेंगे? ऐसे अभी चालू होएगा, अच्छा है ना। सब अपने नए नए लोग टाइटल ढूंढ रहे हैं। अभी सब पाकिस्तान पे टाइटल ढूंढ रहे हैं, अभी सब टाइटल पाकिस्तान पे ढूंढ रहे हैं। ये तो दिल्ली पे है, दिल्ली अपने बाप की, मतलब अपनी दिल्ली है, तो ये टाइटल तो बहुत अच्छा है। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? So, last is, I just want to say I just had a great passion into Bollywood film industry. So I just, from long time, I am an NRI, based in Canada. So settled there from 1981. But I was keeping in touch with the Bollywood industry for a long time. I did in hospitality industry as entrepreneur and different ventures in Canada successfully. But I have created a good network here. It's a great big studio in Chandigarh. So this has all kind of pre-production, production, post-production, even shooting scenic sites. I have created this network. I have my own, and eventually I have done few short films, documentaries. This is my first film under Canem Movie Production. Is my company. ऐसे प्रोड्यूसर आने चाहिए इंडस्ट्री के लिए, नई नई पिक्चर के लिए ऐसे प्रोड्यूसर की जरूरत है आज इंडस्ट्री को खड़े करने के लिए। And soon I am starting Canem Film Institute, which will give all technical and acting classes for all ages, so that it can give a little bit help in the industry. Any non-trained people should come into the film industry.
विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू Thank you. तब क्या कहना चाहेंगे दिल्ली मेरे बाप की, ऐसा क्यों, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुश हैं हम लोग कि आज हमारे फिल्म का ऑडियो रिलीज़ है और हमने इस फिल्म में काम किया। वह इस फिल्म के बारे में टाइटल से ही आप लोग समझ गए होंगे, हमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है इस फिल्म के लिए। ऐसा नहीं है कि हम हमारे लिए बोल रहे हैं कि दिल्ली हमारे बाप की। बेसिकली दिल्ली में ज़्यादातर लोगों को लगता है कि दिल्ली हमारे बाप की है, तो यही हमने उनको बताने की कि दिल्ली सबकी है। हाँ, यही हमने उनको बताने की कोशिश की है कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। किरदार की बात करें, जी किरदार है, कितना तड़का लड़का, क्या अब ऑब्वियसली हीरोइन है तो लटका झटका तो होगा, बट मेरा किरदार इसमें एक जर्नलिस्ट का है और किस तरह से मैं एक स्टिंग ऑपरेशन करके जो विलन है उसका पर्दाफाश करती हूँ सब मीडिया के सामने, पुलिस के सामने, और उसको रियलाइज़ कराती हूँ कि दिल्ली तुम्हारे बाप की नहीं है। मेरा भी बहुत अच्छा है, मैं एज अ फ्रेंड का किया है मैंने, और जैसे इनके साथ किया है तो बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे कि हमारा एक दो सीन है जो मुझे इनके साथ बहुत अटैचमेंट हुई है। हमारा एक सीन था जैसे कि हमारा मेरा पर्स चोरी हो जाता है, तो मैं भागती हूँ और मंदिर में ही होते हैं, तो इनके साथ मेरी आमना सामना टक्कर होती है और हम एक दूसरे को देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे के। फिर हमारी वो आगे की बात चलती है कि उनके बारे में ये स्टोरी बताते हैं कि आगे क्या हुआ था उनके फ्रेंड के बारे में, तो मैं इनसे पूछती हूँ कि कैसे, वो फिर बताते हैं मुझे कि ऐसे ऐसे हुआ। बाकी तो सारी हम मूवी में बताएंगे आपको कि सीन में क्या हुआ, अगर हम पहले बता देंगे तो वो मज़ा नहीं रहेगा, तो फिर आप फिल्म नहीं देखेंगे, फिल्म ये स्टोरी तो देखने हमें यहाँ पता पे देख लोगे आप, पता तो फिर ही आगे है, जाओगे नहीं। तो हाँ या- वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। उनका बात करें दिल्ली, जैसे तमाम ऐसे कांड कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित है फिल्म। हाँ जी बिल्कुल, उसी से प्रेरित है। एक लेसन है फिल्म में कि आए दिन जैसे हम सब सुनते हैं कि दिल्ली में ये हो रहा है, ये रेप, कोई इसी के बेस पे ये फिल्म है और फिल्म में बहुत अच्छा लेसन मैसेज है। दिया गया है कि जैसे लड़कियां होती हैं उनमें अगर हम इस मूवी में बताया दिया जाएगा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें, तो वो जैसे कि ऑडियंस है वो सारा देखेंगे कि कल्चर को, जैसे पुलिस वाले होते हैं वो ध्यान में मैसेज देखेंगे और रीड करेंगे कि ये बात हमारे ऊपर भी दी गई है, सबके ऊपर वो मैसेज दिया गया है। जैसे कि वो थोड़ा ध्यान दे के आगे से वो करने से पहले वो आगे से ध्यान देंगे कि ये चीज़ करेंगे तो ऐसा हो सकता है, तो कि हमारे कांड के ऊपर पिक्चर आ गई तो डेफिनेटली वो सोचेंगे। कहीं ना कहीं संदीप कुमार का भी इसमें पर्दाफाश किया गया है। संदीप कुमार कौन है? आम आदमी पार्टी के नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ये कुछ सब नहीं है। हमने नहीं है। किसी ने नहीं, वो नहीं किया है, आम हमने आदमी पार्टी को टारगेट नहीं किया, नो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं। कुछ नहीं है, नॉर्मल है किसी उसमें। को टारगेट नहीं किया। टारगेट हमने किया है कि जो क्राइम हो रहा है किस तरह से उसको रोके, उसके ऊपर हमारा टारगेट है, बाकी किसी का ऐसा कुछ ऐसा नहीं। किसी पे ब्लेम लगाना वो चीज़ क्या नहीं कहना है। चाहोगे संदीप कुमार जैसे लोगों को? कौन है मैं जानती ही नहीं वो कौन है। कितनी उम्मीद है इस फिल्म से? बहुत, हर बंदे को उसकी फिल्म से बहुत उम्मीद होती है, बाकी तो ये सब ऑडियंस पे डिपेंड है कि उनको ये फिल्म कैसी हमारे लगती जो है। सॉन्ग्स हैं उसमें किया बहुत हिट है, जितने सॉन्ग्स हैं हमारे बहुत हमने पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की है कि हम अच्छी फिल्म तैयार कर सके, बाकी तो डिपेंड ऑडियंस पे है कि वो कितना पसंद करते हैं इस फिल्म को। चलते ऑडियंस लगेगी थिएटर में क्यों जाए? क्यों जाए? वेल दिल्ली के लोग तो क्यों जाएंगे, वो तो जाएंगे ऑटोमेटिकली, एक बार तो सोचेंगे कि क्या है इस फिल्म में, दिल्ली मेरे बाप की, तो हम देखने जाए। बाकी लोगों को भी जाना चाहिए क्योंकि हमने एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है, तो हमने इतनी मेहनत की है तो हमारी मेहनत देखने के लिए सबको जाना चाहिए। जाना चाहिए। और हमेशा सबने हमको अपना प्यार आशीर्वाद दिया है, तो इसकी सक्सेस के लिए भी हमें आप सबका प्यार और आशीर्वाद चाहिए, तो डेफिनेटली सबको एक बार जाना चाहिए। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहेगी, जो देखो हर एक जगह एक सीखे तो होते नहीं, हर एक जगह चंगे भी होते हैं, मंदे भी होते हैं। जो बिगड़े हुए हैं, जिनकी मेंटालिटी बहुत ख़राब हुई हुई है, उनको सुधरना चाहिए और सबकी बेटी को अपनी बहन के समान समझना चाहिए। जो गलत काम करते हैं, जब भी उनको पता है इसका रिजल्ट मंदा ही होएगा, फिर उनको अभी के लिए नहीं, उनको आगे के लिए सोचना चाहिए। नाम मैं एज एक्टर अनुज गिल के नाम से काम करता हूँ और मेरे फ्रेंड
कोमल जी जो एक्ट्रेस इस फिल्म की हैं, दिल्ली मेरे बाप की, उन्होंने कॉल किया मुझे, उन्होंने कॉल किया मुझे और बोला कि एक गाना है तुम्हारे लिए जो तुम्हारे लायक है, कर सकते हो तो देख लो सुन के। तो फिर मैंने उस गाने के लिए शशि से बात की, शशि से मिला जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, और मुझे गाना पसंद आया। तो फिर हम लोगों ने फिर 2 दिन के बाद शूट कर लिया। और बेस्ट विशेस टू शशि जी फॉर दिल्ली मेरे बाप की। और बाकी मेरा तो इसमें किरदार यही है कि मैंने एक प्रमोशन सॉन्ग किया एक मूवी के लिए, मेरे आगे खड़ा जैसे कि ट्रेलर तो आप सभी ने देख लिया, लेकिन इसकी म्यूजिक के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं कि बहुत ही रोमांटिक पेपी नंबर्स हैं इसके। प्लीज बिग राउंड ऑफ एप्लॉज। चकाश सर सामने सर सामने यस मैम यस यस सामने सर सामने हाँ हाँ छोटा ग्रुप रहा। राजपाल जी क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? और कहते हैं वही दिल्ली मेरे बाप की, दिल्ली में ये एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है सब युवा शक्तियों ने। इजरार भाई ने मुझे इसके लिए जो है वो काफ़ी कि हमारा भी इसमें मोरल सपोर्ट मिल जाए। वर्मा जी, पूरी टीम, सब लोगों को, पूरे स्टार कास्ट को, सबको ढेर सारी बधाइयाँ। और खूब फिल्म चले, खूब म्यूज़िक सबको पसंद आए और सबको फिल्म पसंद आए, इसलिए अपनी तरफ शुभकामनाएं देता हूँ। अभी बस आपके सामने ट्रेलर देखा है और क्योंकि इसका आज म्यूज़िक रिलीज़ है तो इसका हिस्सा होने का सौभाग्य मिला, उसको सब दोस्तों को प्यार मानता हूँ। और फिल्म जैसा म्यूज़िक अभी गाना या जो ट्रेलर थे अच्छा पॉजिटिव फील हुआ है और दुआ करता हूँ कि अच्छी फिल्म लगे लोगों को, अच्छी फिल्म बने भी और लोगों को खूब मनोरंजन करे। मैं दिल्ली पढ़ा हूँ, मैं दिल्ली को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये 125 करोड़ लोग कह सकते हैं दिल्ली मेरे बाप की। अच्छा, जो दिल्ली में डिमांड होते हैं, होता है, तो उसको भी इस फिल्म में दर्शाया गया है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि कोई भी गलत होगा तो उसको सजा मिलेगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, गलत हो तो उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। और दिल्ली हमारा प्राउड है, हमारे देश का प्राउड है। और अगर कुछ ऐसी शर्मसार करने वाली घटनाएं जब भी होती हैं तो समाज हो या देश हो या कोई भी नेता अभिनेता या कोई भी नागरिक है जो इस देश को प्यार करता है, इस देश की मिट्टी में जन्मा है, दुख फील करता है और शर्म महसूस करता है। और बस प्रार्थना करता है कि जो लोग इस तरीके की बात सोचते हैं उनको सद्बुद्धि मिले ताकि दिल्ली आगे बढ़े। दिल्ली आगे बढ़ेगी तो पूरा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि दिल्ली के संस्कार पूरी दुनिया में, पूरे देश में जो है प्रस्तुत होते हैं और दिल्ली से बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं सब। जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली में आपने भी एजुकेशन किया है, तो क्या दिल्ली की मिट्टी में खास बात है? हर किसी को लगता है कि दिल्ली मेरे बाप की है। दिल्ली दिल वालों की है। दिल्ली से जुड़ी कोई मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहेंगे? आपकी स्कूलिंग वहाँ से हुई है, आप दिल्ली से बहुत इत्तेफाक रखते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या मेमोरीज है जो शेयर करना चाहेंगे? अब अगर 18-20 साल की जर्नी को 2 मिनट में बता पाना तो मेरे बस की बात नहीं है कि दिल्ली से आज 18-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन ये कह सकता हूँ, एक माँ ने जन्म दिया, यूपी हमारी जन्मभूमि है। एक माँ ने जीवन दिया, महाराष्ट्र मुंबई हमारी कर्म भूमि है। और जन्म और जीवन के बीच में एक ऐसी दाई होती है जो पाल पोस के बड़ा करती है और ताकि उसका जो बच्चा
बड़ा हो तो पूरे देश में अच्छे से नाम रोशन कर सके, तो दिल्ली हमारे लिए दाई माँ है। आप अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं। अब इसकी तैयारी फायर फाइटर की तैयारी है, अब इसी की शूटिंग की तैयारी है, बस इसी में थोड़े दिन से खोया हुआ हूँ फायर फाइटर की। सुनते चलते आखिरी सवाल राजपाल जी जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो क्यों कहते हैं नहीं ऐसा कोई नहीं है। राजपाल को ये नहीं पता है राजपाल के मित्र कितने हैं, लेकिन राजपाल को ये पूरी तरीके से पता है कि राजपाल का दुनिया में कोई शत्रु नहीं है। आपका कहना चाहेंगे? यारों के यार है, छोटे भाई है, बस इतना प्यार है, मतलब हमेशा कंधे से कंधा मिला हमेशा ऑलवेज 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 एक मतलब एक आवाज में चले आते हैं। ताली दोनों हाथ से बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू गॉड।